Good morning, students. Today let's start topic Clostridium Tetani. First discuss about the introduction. Clostridium Tetani is the causative agent of tetanus. Clostridium Tetani द्वारा tetanus disease होता है. Then come to the morphology. Tetanus is a gram-positive anaerobic bacilli. It is a gram-positive because it has the thick peptidoglycan layer. And it is anaerobic bacilli, that means it does not require oxygen for growth. It is size about 4 to 6 into 1 mu. Okay, it is a non-capsulated motile, that means it has not capsule, outer layer, because capsule causes the protective outer covering on certain gram-negative bacilli, and so these Clostridium tetani has no capsule, okay, has not outer covering, and Clostridium tetani is a motile, that means it will be moved as of its own accord. Okay, so the cells has ability to the move, and tetanus has a spore. That is, spores are very spherical nature, terminal and bulging. Okay, and these spores are seen as like the drumstick. Okay, so spores are very spherical in nature. And what is the spore? Already I have told that spores causes bacteria to defend themselves. Okay, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ପୋର ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି. ଓକେ, ସୋ ଏଇ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିରେ ରେଜିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି. ଓକେ, ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି. ତ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭେରି ସ୍ପେରିକାଲ ନେଚର ଥାନ୍ତି, ଟର୍ମିନାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ. ଓକେ, the spores has end, and the spores are like the swelling protuberance, and that means the bulging has the number of ends. So and that spores has like gives appearance like the drumstick. Okay, ତ ଏଥିରେ କହିଗଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେରିକାଲ ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲ କହିଥାଉ, ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱେଲିଂ ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଥାଏ. ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଟିଟାନସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଥୋଜେନିକ୍ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିସ୍ ନେଚର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ମେକ୍ସ ଫୁଡ୍ ବାଇ ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ. ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେଡ୍ ଡିକିଂ ମ୍ୟାଟରରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଥାନ୍ତି. ଓକେ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସଏଲ୍ ୱାଟରରେ ପାଇଥାଉ. ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ. ଡିକମ୍ପୋଜିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହୁଏ ସିମ୍ପଲର ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାଟରରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି. ଓକେ, ତ ସେଇ ସିମ୍ପଲର ଅର୍ଗାନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି. ସୋ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଥୋଜେନିକ୍, ମାନେ ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୁପରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାସିଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଏଲ୍ ୱାଟରରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିକେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ମ୍ୟାଟର ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି. ଓକେ, ଦେନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କଲଚର. Clostridium tetani ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବ୍ଲିଗେଟ୍ ଆନାରୋସ୍, କାହିଁକିନା ଏମାନେ 20 to 20.95% ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି. ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ଲିଗେଟ୍ ଆନାରୋସ୍, ଏବଂ ଏମାନେ 30-70 ସେଲସିୟସ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏବଂ pH ଭ୍ୟାଲୁ 75 ପରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲଡ଼ ଅଗର ବା ରବର୍ଟସନ୍ସ କୁକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି. ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଗୁଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ମିଡ଼ିୟମଟା ଟର୍ବିଡ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍
होता है दैट मीन्स यही मीडियमटा हेवी स्मोक बा मिस्ट रे भरपूर हो रही है एवं एथरे कौन हुए ना पार्टिकल गुड़ाक से मीडियम पार्टिकल्स गुड़ा कौन करती ना वाटर डिजल्व होता एवं जो लाइट पास करा जाए से वाटरटा साधारणतः क्लाउड बा मर्की आकार में देखा जाए था ओके। तो आउथर कहूँ जे क्लोस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टेरियाटा रबर्ट कुक्ड मीट मीडियम बा ब्लड अगर मीडियम भल भाव में ग्रोथ करपारती एमाने जो मीडियम ग्रोथ करती से मीडियमटा टर्बिड विथ गैस प्रोडक्शन होता है से कौन होता है ना भरपूर मिस्ट और स्मोक रे भरपूर हो रही है एवं एथेरे कौन होता है जो पार्टिकल गुड़ाक नहीं था से पार्टिकल गुड़ाक वाटर भल भाव में डिजल्व हो पारती और जो लाइट पास करा जाए साधारणतः वाटरटा क्लाउड आकर देखा जाए एवं एथेरे जो मीट आम रबर्टसन कुक मीट मीडियम जो नहीं था से जो मीट नि जाए से मीटा कौन हुए ना पिंक रे कन्वर्ट हो जाए किंतु से कौन हुए से मीटा भल भाव में से मीडियम डाइजेशन हो न था आब्जर्वेशन हो न था पिंक रे कलर देखा जाए एवं से कल्चरटा साधारणतः एसिडिक रिएक्शन होता है एवं सोर स्मेल जना पड़ी था ओके स्मेलटा सोर आकार जना पड़ी था एवं कल्चरटा साधारणतः एसिडिक रिएक्शन होता है। आम देखा ग्रोथ ऑन ब्लड अगर मीडियम केमती से बैसिलिटी ग्रोथ हो पारुछि ओके। जिते आम कौन करुचे ना से मीडियम ब्लड अगर मीडियम बैसिली को नौचे से बेसिली भल भाव में ग्रोथ करें ओके। सो ये ब्लड अगर मीडियम इन द प्रीवियस क्लास ऑलरेडी टीचर सेड दैट अबाउट द ब्लड अगर मीडियम। सो ब्लड अगर मीडियम हूँ गोटे एनरिच्ड मीडियम जो बैक्टेरिया ग्रोथ करें द ब्लड अगर मीडियम कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन सोर्स दैट इज ट्रिप्टोन्स सोयाबीन प्रोटीन डाइजेस्ट सोडियम क्लोराइड अगर एंड 5% सी ब्लड ओके। Here we are differentiated bacteria based on their hemolytic properties. Hemolytic property अनुसार आम बैक्टेरिया को चिन्ह पारि था ये ब्लड अगर मीडियम रे जो आम पार्टिकल्स नेला यथा प्रोटीन सोर्स ट्रिप्टोन्स सोयाबीन प्रोटीन डाइजेस्ट सोडियम क्लोराइड अगर एवं 5% सी ब्लड नेले से ब्लड अगर मीडियम रे कौन होची जेतरे बैक्टेरिया को आम बैक्टेरिया को छाड़ुचे तो बैक्टेरिया विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया तांकर हेमोलाइट प्रॉपर्टी अनुसार आम ताको चिन्ह पारि था से केते टाइप से परसेंटर से आरबी सेलटा को रप्चर बा डिस्ट्रॉय कर पारछंती से अनुसार आम बैक्टेरिया को आम आइडेंटिफाई करि था ओके। तो देखिए जिते आम क्लोस्ट्रिडियम टेटानी को नहीं था ब्लड अगर मीडियम से ब्लड अगर मीडियम कौन थे क्लोस्ट्रिडियम टेटानी कौन करे गोटे थीटा टॉक्सिन बोली गोटे टॉक्सिन प्रोडक्शन करें से थीटा टॉक्सिन माध्यम कौन हुए ना गोटे कंप्लीट हेमोलाइसिस कल्चर मीडियम तैयार हुए दैट मीन्स कंप्लीट डेस्ट्रक्शन ऑफ आरबी सेलटा कंप्लीट डेस्ट्रक्शन हो जाए ओके। एवं इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस अकर्स इन सर्टन स्पेसीज आउ कि स्पेसीज कौन हुए ना इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस हुए माने कम्प्लीटली आरबी सेलटा डिस्ट्रक्शन हो न था इनकम्प्लीट हो रही था जो इनकम्प्लीट हेमोलाइसिस पैटर्न को आम कही था टारगेट हेमोलाइसिस ओके। देन कम टू द biochemical reaction. In the biochemical reaction, here the Clostridium tetani has feeble proteolytic. That means it has the lack of property to break down of the protein into the polypeptide and amino acid. Okay, so एथरे Clostridium tetani feeble proteolytic property रही feeble proteolytic रे कौन हुए ना लैक ऑफ स्ट्रेंथ अच्छी क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जहाँकि प्रोटीन को भांगिकी अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड तैयारी करि थाए जो प्रोटीन टाक भांगिकी पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड को तैयारी करि थाए से तार से भांगिबार स्ट्रेंथटा बहुत लैग थाए एवं एथरे सैक्रोलाइटिक प्रॉपर्टी न थाए एथरे कौन सैक्रोलाइटिक प्रॉपर्टी कौन हुए ना कि सुगारटा एथरे ब्रेकडाउन हो न थाए सो इट डज नॉट अटैक एनी सुगार्स इन द रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस रे कौन हुए टिटानस स्पेसीस टिटानस स्पेसीस गुड़ाक विभिन्न डिफरेंट हिट रे कौन करती रेजिस्ट करते जनरली दीज आर द killed by the boiling the water or boiling by the boiling in the 10 to 15 minutes they are killed and some also resist up to 3 hours in the boiling तो किसी कौन कहते क्लोस्ट्रिडियम टिटानी स्पीसीज गुड़ा कौन करती 10 ରୁ 15 मिनट बॉइलिंग रे नष्ट हो जाती मरी जाती आउ केते कौन करती 3 घंटा पर्यंत रेजिस्ट होगी रही पारती एवं ऑटोक्लेव मेथड रे 121 डिग्री सेल्सियस रे 20 मिनट भितर कौन होता एगुड़ाक स्पोर गुड़ाक नष्ट होता ओके so see that diagram where the Clostridium tetani has the drumstick appearance then come to the pathogenesis एथिरे पैथोजेनेसिस कौन देखा ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी दुई प्रकार टॉक्सिन प्रोडक्शन करता है गोटे फास्ट इज द टिटानोलाइसिन दैट इज नोन एज द हेमोलाइसिन एंड सेकंड इज द टिटानोस्पाज्मिन दैट इज नोन एज न्यूरोटॉक्सिन सो टिटानोलाइसिन इज नोन एज द हेमोलाइसिन ओके so in the titanolysin what happen here the also RB cells are destroyed by the in the blood agar medium the Clostridium tetani produce extracellular enzyme okay that extracellular enzyme known as the hemolysin okay तो ब्लड अगर मीडियम रे कौन हुए ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी कौन करता है गोटे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम क्रिएट करे जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहते हेमोलाइसिन से हेमोलाइसिन द्वारा कौन हुए ना आरबी सेल गुड़ाक रप्चर व डिस्ट्रक्शन हो जाती सो एथरे कौन हुए ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम क्रिएट कला ताको आम हेमोलाइसिन कहले हेमोलाइसिन द्वारा कौन हुए ना आरबीटा सेलटा डिस्ट्रक्शन हो गला ब्लड अगर मीडियम रे ब्लड अगर मीडियम आम बहुत पार्टिकल नहीं जो 5% सी ब्लड नहीं प्रोटीन सोर्स नहीं सोयाबीन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं अगर नहीं एसेटा आउट केते कंपोनेंट नहीं तो से जो ब्लड अगर मीडियम रे कौन है ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी स्पेसीस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी स्पोर गुड़ा कौन कले क्लोस्ट्रिडियम टिटानी गोटे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम क्रिएट कला जोटा को कहते हेमोलाइसिन ता द्वारा कौन है ना लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल हो गला माने रेड ब्लड सेलटा रप्चर हो गला और रेड सेल संपूर्ण डिस्ट्रक्शन हो गला ओके then come to the titanospasmin titanospasmin is a neurotoxin which is also another toxin produced by the Clostridium tetani so neurotoxins होची कोन होची ना neurotoxin जोटा कि हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओके न्यूरोटॉक्सिन होची कोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम रा कोन होय स्ट्रक्चर फंक्शन अल्टरेशन हुए साधारणतः न्यूरोटॉक्सिन कौन हुए ना लीड इथेनॉल नाइट्रिक ऑक्साइड भाया सब्सटेंस गुड़ाक रही है से सब्सटेंस गुड़ा कौन करते ना नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन को अल्टरेशन करें से व्यक्तिर बॉडी पे बहुत क्षतिकारक तेणु क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जिते अटैक करे ह्यूमन बॉडी को तो टिटानोस्पाज्मिन जो न्यूरोटॉक्सिन रही रही बहुत गुटे सब्सटेंस लाइक लीड इथेनॉल नाइट्रिक ऑक्साइड से गुड़ा कहती ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन को अल्टरेशन करते तेणु यहाँ बहुत क्षतिकारक होता है और बहुत गुड़े क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करता है एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटानी इन्वेसिव पावर बहुत कम रही कहीं ना जिते जो पार्ट को इंट्रोडक्शन करे तापर से ऑटोमेटिक स्प्रेड होकर न्यूट्रलाइज हो जाए ओके एवं टिटानस डेभलप केमिति होता है ना गोटे वुंड रु ही टिटानस डेभलप होता है एवं टिटानसर सोर्स गुड़ाक साधारणतः सॉइल डस्ट फेसेस होता है एवं इन्फेक्शनटा साधारणतः लोकालाइज्ड होता है गोटे पर्टिकुलर प्लेस बा पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट रे होता है जिते टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाए से टिश्यू डिस्ट्रक्शन हवा जगह कौन हुए ना गोटे जर्मिनेशन प्रोसेस रे कौन हुए ना टिटानस स्पेसीस गुड़ाक बा स्पोर गुड़ाक ग्रोथ होता ओके एवं से टॉक्सिन मत प्रोडक्शन होता है एवं डिजीज जो साइन सिम्पटम गुड़ाक साधारणतः टिटानोस्पाज्मिन न्यूरोटॉक्सिन जो टिटानस बेसिलाई द्वारा
टिटानी बेसिलाई द्वारा जो न्यूरोटॉक्सिन प्रोडक्शन होता है तारी माध्यम कौन हुए ना व्यक्तिर बॉडी रे बहुत बहुत प्रकार साइन सिम्पटम देखा जाए एवं बहुत गुटे पैथोजेनिक इफेक्ट देखा जाए। तो टिटानस टॉक्सिन्स only block the pre-synaptically or block the synaptic inhibitions। आम जानी जे सिनाप्स कौन ना गोटे न्यूरल कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। सो जो न्यूरल कम्युनिकेशन होता है सी ये कौन करे प्री सिनेप्टिकली माने सिनाप्सन हवा पूर्व कौन करे टॉक्सिन कौन करे ताकू जो टिटानस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जो टॉक्सिन क्रिएट हुए से टॉक्सिन कौन करे ना प्री सिनेप्टिकली सिनाप्स हवा पूर्व सिनाप्स प्रोसेसटा को बंद कर दिए। ओके जहाँ मध्य सिनाप्स ठीक भाव हो पारे ना। ओके जहाँद्वारा कौन हुए ना अनकंट्रोल्ड इम्पल्स गुड़ाक स्प्रेड हो जाए एवं ता द्वारा कौन हुए ना मसल रिजिड स्पाजम हो जाए। ओके तो जानले स्पोर गुड़ाक जदि आम जदि जो टिश्यू डेस्टेशन है से जर्मिनेशन प्रोसेस कंटिन्यू है थ्रू द जर्मिनेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द क्लोस्ट्रिडियम टेटानी the bacteria the Clostridium tetani bacteria will grow at that place। okay and that Clostridium tetani produce the toxins known as neurotoxins which causes the pathogenic effect and shows many signs and symptoms and it will block the synapse presynaptically। okay before synapse in the central nervous system or a spinal cord that blocks so that neural communication not occurs properly। okay so that causes the uncontrolled discharge of the impulses in the central nervous system that leads to muscle rigidity and spasm। okay see that is the pathophysiology or mechanism of disease develop। then come the symptoms। so Clostridium tetani shows many symptoms like the jaw muscles becomes spasm and stiffness। jaw muscle becomes very painful and very hardness tenderness। okay neck muscle also becomes very stiffness and that is becomes the hardness or tenderness or that also causes the difficulty in swallowing ठीक भाव में व्यक्ति करि पारे नहीं। abdomen muscle also becomes stiffness and body spasm muscles becomes very painful। okay other signs symptoms like the patients suffers from the fever and patient has sweating blood pressure will be elevated there is a rapid heart rate। okay then come to the lab diagnosis। the lab diagnosis we distinguish the species bacteria species। okay which type bacteria and which type of their culture and which type of treatment will be given। first in the laboratory test are done only to confirm it। okay so laboratory test कौन हुए Clostridium tetani डायग्नोसिस बा तार ट्रीटमेंट प्रोसेस केमती रहिबो एवं को टाइप से ग्रोथ करूची ताको जना पड़ी थाए। सो एथरे स्पेसिमेन आम जो नवा साधारणतः वुंड स्वाब प्रोसेस आ एक्जुलेट टिश्यू फ्रॉम द वुंड द्वारा आम कौन करे ना लैब टेस्ट करि थाउ। तो वुंड स्वाब कौन एवं एक्जुटेड टिश्यू वुंड केमती आम नहीं कि केमती आम कौन स्पेसिमेन को लेकिन आम लैब टेस्ट करि परिबा। ओके ये दुटा प्रोसेस साधारणतः वुंड स्वाब the wound swab is similar to the cotton bud। आमर कटन बर्ड सब देखी थे तो कटन बर्ड टाइप द वुंड स्वाबटा ठीक से टाइप होता है। ओके जिते आम सैंपल कलेक्शन करवा तो टिश्यू एक्जुटेट्स गुड़ा को कलेक्शन करवा से कौन करवा स्वाबटा कौन करवा नहीं कि गोटे ट्यूब भितर रखीदे से ट्यूब जो ट्यूब रे कल्चर मीडियम थिबो ब्लड अगर मीडियम थाउ कि रबर्टसन कुक्ड मीडियम थाउ से ट्यूब रे मीडियम गुड़ा कल्चर मीडियम थिबो से कल्चर मीडियम ट्यूब रे कौन करवा नहीं कि आम जो कल्चर स्वाबटा को लेकिन आम कौन करवा एंट्री करदे। तो स्वाब ऑलरेडी कौन होता है ना डेड टिश्यू एक्जुटेट्स गुड़ाक लाखिक रही थे। ओके तो तापर कौन हो से स्वाब ट्यूब को आम कौन करवा स्टेरिलाइज पैकिंग रखा। ओके एवं एगुड़ा को कंटामिनेशन हवा को अवॉइड करवा। तापर देखा
तापर कल्चर टेस्ट देखा जे से समय कल्चर टेस्ट जना पड़ो जे यहाँ कौ बैक्टेरिया कौ टाइप ग्रोथ करुच्ची क्लोस्ट्रिडियम बैक्टेरिया कौ टाइप ग्रोथ कर जानी हे तो ये प्रोसीजर वुंड स्वाब प्रोसीजर केमी रहा आम साधारण कौन करवा ना आमर हैंड को थरली वाश करवा ड्राई करवा एवं ग्लोव्स आप्रन पिंधिबा ओके गिव द पोजिशन पेशेंट कंफर्टेबली ओके then swab remains in the sterile package okay so remove the swab from the sterile package जदि आम कि नस्ट्रिल्स एक्जिला एरिया स्वाब करुचे तो से कौन करवा स्वाब को फास्ट कौन करवा कि स्टेराइल सोडियम क्लोराइड रे मॉइस्चर करके तापर आम कौन करवा स्वाबिंग करवा नस्ट्रिल एक्जिला एरिया को ओके जदि आम देखा कि एक्जुटेड रही एक्जुटेड जदि आम भी पाइबा ताले स्वाब को फास्ट वेट करके तापर कौन करवा कल्चर जो ट्यूब्र जो कल्चर ट्यूब अच्छी तार टपटा खोलिबा एवं स्वाबटा कौन करवा मॉइस्ट करके कौन करवा से एक्जुटेड को जो एक्जुटेड्स गुड़ाक रही डेड टिश्यू रही पस रही से कौन करवा स्वाब को स्वाबिंग कर सारापर जो ट्यूब कल्चर ट्यूब अच्छी कल्चर ट्यूब्र ऊपर भाग खोलिबा एवं ता भितर स्वाबटा को रखीदे तापर सैंपलटा को लेबलिंग करदे तापर लैब टेस्ट को पठेदेला से कौन हुए ना लैब टेस्ट बैक्टेरिया ग्रोथ कल्चर सब जना पड़ जाए और कौ टाइप डिजीज क्रिएट कर जानी होता है देन कम टू द माइक्रोस्कोपी आम जानले जे इट इज एन ग्राम स्टेनिंग बेसिलाई has a drumstick appearance in the culture medium they are well grows at the temperature about 37 degrees Celsius in the 20 to 40 hours in the culture medium polymyxin is also be added okay polymyxin B is helpful for the breakdown of the bacterial cells for that reasons polymyxin B added in the culture medium okay then Clostridium Tetani also produce swarming growth that means it grows from the point of area to and spread rapidly then then it will be neutralized okay then come to the prophylaxis how to prevent it how to recure okay so first the surgical in the surgical method if there is any blood clots foreign body that will be removed to prevent the anaerobic conditions anaerobic conditions because anaerobic conditions if there is anaerobic condition then bacteria grows so through by the preventing anaerobic conditions and removal of the foreign blood clots so in the surgical method that will be prevented the growing of the prevent to the growing of the bacilli okay तो सर्जिकल मेथड कौन करवा ना आम अनारोबिक कंडीशन को प्रिवेंट करवा कारण अनारोबिक कंडीशन बैक्टेरिया भल भाव ग्रोथ कर जाए ओके विदाउट ऑक्सीजन बैक्टेरिया भल बेसिलिटा भल भाव ग्रोथ कर जाए ओके एवं से जो टिश्यू जो फॉरेन बॉडी ब्लड क्लॉट रही से भल भाव रिमूवल करदे एवं विदाउट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो बेसिलिटा भल बढ़ुला से बढ़ी पारनी तेणु सर्जिकल मेथड्रे आम बैक्टेरिया ग्रोथटा को प्रिवेंशन करें एवं एंटीबायोटिक थेरापी प्रोवाइड करवा व्यक्ति को लाइक द पेंसिल इंजेक्शन एरिथ्रोमाइसिन या देले कौन हुए ना डिजीज केयर होता है then immunizations like the attenuation and passive immunization in the attenuations tetanus TT दबा tetanus toxoid दबा आम 0.5 ml tetanus toxoid IM रे दबा एवं यही tetanus toxoid 4 ରୁ 6 सप्ताह भितर दुटा डोज जो फास्ट दुटा डोज दबा सेटा 4 ରୁ 6 सप्ताह भितर दबा इंटरवल 4 ରୁ 6 सप्ताह मध्य दुटा डोज दबा एवं सेकेंड थर्ड डोज 6 to 12 month भितर दबा इन द पासिव इम्यूनाइजेशन कौन करवा ना एंटी टेटानस सीरम व्यक्ति को दबा एंटी टेटानस सीरम साधारणतः इम्यूनाइजिंग होर्स रु तैयार होता है जो होर्स जो हर्सेसटा इम्यूनाइजिंग होता है से इम्यूनाइजिंग हर्सेस रु एंटी टेटानस सीरम व एटीएस प्रोडक्शन होता है एवं ये डोज साधारणतः 1500 इंटरनेशनल यूनिट आम कौन करवा
ना इंटरमस्कुलरी दवा साधारणतः वुंड को भल भाव क्लीयर करवा और तापर आम कौन करवा 1500 इंटरनल यूनिट इंटरमस्कुलरी दवा यहाँ हूँ पासिव इम्यूनाइजेशंस देन कम टू द कंबाइंड प्रोफाइलिक्स द पर्सन्स हु आर नॉट इम्यूनी will give the ATS, okay, anti-tetanus serum and or STIG. STIG, that is the human tetanus immunoglobulin, will be given in the another arm, okay. Then will be given the second or third dose of the ATS or STIG in the monthly interval. Then come to the treatment. The patient will be isolated. There is no overcrowding and there is no noise, light in the room. And if the for the feeding purpose, we will do the tracheostomy, opening of do the opening of the neck. That will be helpful for the maintaining the airway, clear the airway. Then we provide the antitoxin that is used to neutralize the unborn toxin, that is the tetanus toxin. So antitoxins given to neutralize the tetanus toxins. Even antibiotic therapy also provided, that is like the penicillin, metronidazole also be given to the patient for the recovery. And patient will be immunized with the full course of toxid to prevent the tetanus to causing tetanus by the Clostridium Tetani. Then in the nursing care, the patient will be isolated and protect them from the noisy light, and the urine will be collected in the 24 hours. Patient will be observed in the 24 hours, and patient's bed and cloth will be dry, and all observe the patient is not urinated in the bed. If the urinated, then bed will be changed immediately to prevent the infections. So that about the morphology, bacterial actions, resistance, microscopy, culture, prophylaxis and nursing care and treatment of the Clostridium tetani is over. Thank you.